جی السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام میم، ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام میم. بیٹا آپ لوگوں کو اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ جی یس مس. میم. اچھا بیٹا، آپ لوگوں نے جو پچھلے لیکچرز لیے ہیں آج میں ان کا ٹیسٹ نہ لے لوں آپ لوگوں سے؟ مس آپ کو جیسا لگے. آپ کے بیٹا آپ لوگوں نے وہ سارے لیکچرز جو ہیں وہ تیار کر رہے ہیں ریگولر بیسس پہ یا نہیں؟ مس کر رہے ہیں. بیٹا آپ مجھے رپلائی نہیں دے رہے. جی فرحان، آپ نے فرسٹ ٹائم لیے کوئی مسئلہ نہیں بیٹا، یہ اس کے لیکچر سارے آپ لوگوں کے ریکارڈیڈ پڑے ہوئے ہیں ساری کلاسز کے. ریگولر آپ لوگ ٹھیک ہے کریں اس کو. تو باقی یہ بچے کچھ لے رہے ہیں ریگولر بیسس پہ، یہ مجھے نظر آ رہے ہیں ان کے نیمز، کیونکہ نیمز ان کے ایڈ ہے میرے پاس. ٹھیک ہے اچھا بیٹا، چلیں آج میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ٹاپک تھوڑا سا میرا تھا کہ آپ لوگوں کو گرامر کے حوالے سے کچھ چیزیں کروا دوں. آج آپ لوگ بتائیں یا اگلی نظم کرواؤں؟ آج میں آپ لوگوں پہ چھوڑتی ہوں، یہ میرے کچھ بچے جو ہے نا ریگولر جو لے رہے ہیں کلاسز. جی عبداللہ بیٹا آپ بتائیں. مس آپ کو جیسے صحیح لگے کہ گرامر زیادہ ضروری ہوگا ہمیں یا پھر نظم. جی بیٹا. مس میں کہہ رہا ہوں جیسا آپ کو صحیح لگے آپ کروا دیں. اچھا ٹھیک ہے. اصل میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کی وہ تیاری کر رہے ہو، آپ ایک ریگولر آپ لوگوں نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے، تو اس میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو یہ انیشیٹیوز ملنے چاہیے نا، آپ کے تھوڑے سے ٹیسٹ ویسٹ بھی میں ساتھ تھوڑا سا تیاری کرواؤں آپ کو. تو بیٹا اس میں ابھی میں ایک فائل دیکھ رہی تھی، ڈھونڈ رہی تھی، وہ مل جاتی ہے تو میں نا آپ کو پیپر کی ٹھیک ہے وہ میں آپ لوگوں کو بیٹا کرواتی ہوں. ٹھیک ہے اچھا بیٹا، یہ درخواست کے حوالے سے ذرا نکالتے ہیں. ٹھیک ہے آج ایک بچے کا سوال بھی تھا. آپ کو بیٹا درخواست بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. سکرین پاز ہو گئی ہے. ٹھیک ہے یہ آپ کا بیٹا 5 نمبر کا کریٹیو رائٹنگ ہے آپ کی. ٹھیک ہے ویسے تو میں نے اس کی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیٹا وہ اوور آل سارے بچے جو ہیں اس کو کر سکیں، لیکن یہ ایک پریزنٹیشن کے ذریعے بیٹا میں آپ لوگوں کو آج بتاتی ہوں. اس میں درخواست کا بیٹا ایک تو آپ کو پتا ہے کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ نہیں مس. جی بیٹا. مس میں کہہ رہا ہوں نہیں پتا. بیٹا یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. ٹھیک ہے یہ است کا لفظ جو آتا ہے نا، دار کا مطلب ہوتا ہے میں، خو کا معنی ہوتا ہے خواہش، است ہے یعنی میری خواہش ہے. تو ظاہر ہے بیٹا ہم جب کسی کے پاس درخواست لے کے جاتے ہیں تو اپنی خواہش ہی لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا، جو آپ کی خواہش ہوتی ہے وہی آپ لے کے جا رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے اب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے آپ کا. ٹھیک ہے اس میں دیکھیں آپ کو جو کویسچننگ ہو سکتی ہے، روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل کون کون سے ہیں جن کے اوپر یہ درخواست آپ کو لکھنے کے لیے آ سکتی ہے، زندگی کے ان اجتماعی پیش آنے والے مسائل کا حل کیسے تلاش کیا جائے، اور کسی اجتماعی مسئلے کی توجہ اگر کسی محکمے کی طرح دلوانی ہو تو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے یہ آپ کا تھوڑا سا اس میں بیٹا آپ دیکھیں تو وہ طریقہ ہے درخواست کا. یہ آپ کا بیٹا آ گیا کہ فارسی زبان کا لفظ ہے، لغوی معنی اور اصطلاحی معنی. بیٹا لغوی معنی آپ بتائیں مجھے درخواست کا کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی میں آپ لوگوں کو بتا بھی چکی ہوں بیٹا.
यानी आप किसी के सामने जाके कोई अर्ज पेश करते हो, कोई गुजारिश करना किसी से, कोई अपनी बात मनवाने के लिए, कुछ भी, ठीक है। लेकिन इस्तिलाही मानी में ना, ये आप इन पॉइंट्स को नोट करें, ठीक है। दरख्वास्त में ज़ाती मसाइल का जिक्र और हल तजवीज़ करना, दरख्वास्त में इज्तमाही मसाइल का जिक्र और हल तजवीज़ करना। अब आपने जब लिखना है ना, तो आपने कोई बेटा मसला अगर बयान करना है तो उसका हल भी बताना है उस दरख्वास्त के अंदर, ठीक है। हल जिसके इख्तियार में होता है, इसे दरख्वास्त लिखना। अदालतों में इंसाफ के हसूल के लिए जो दावा दायर किया जाता है वो भी दरख्वास्त के ज़रिए किया जाता है। आपने कोई भी काम करवाना है तो उसके लिए आपका दरख्वास्त लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब देखें, अब इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। दरख्वास्त लिखते वक्त अच्छे कागज़ का इंतखाब किया जाए, दाएं हाथ मुनासिब हाशिया रखा जाए। अब ये वाली रिक्वायरमेंट तो बेटा आपकी पूरी हो गई ई शीट की वजह से, ठीक है। और उन्होंने आपको बता दिया कि इस लाइन से आप अगर एक वर्ड भी आपका दूसरी तरफ जाएगा तो आपका काउंट नहीं होगा, ठीक है। जिस अफसर के नाम दरख्वास्त लिखनी मकसूद हो, उसका ओहदा और महकमे का नाम लिखा जाए और कोशिश की जाए कि ये सब कुछ एक सतर में पूरा हो जाए। बेटा ये कुछ बच्चों का सवाल होता है कि ये कितना होना चाहिए या कैसे होना चाहिए, तो ये चीज़ आप नोट करें। अगर दूसरी सतर की ज़रूरत महसूस हो तो दूसरी सतर का इतना ही हिस्सा इस्तेमाल किया जाए जितना ज़रूरी हो, यानी वस्त या वस्त से भी कम इसे दाएं से बाएं को शुरू किया जाए। अब बेटा ये एक सवाल है, यहाँ पे अलकाब के लिए आमतौर पर जनाब अली का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ देखें नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं आपके, कभी कभी दरख्वास्त का मौजू भी लिख दिया जाता है ताकि मुतल्लिका अफसर सारी दरख्वास्त पढ़ने की बजाय दरख्वास्त के अनवान को देखकर दरख्वास्त का मौजू समझ ले। मौजू या उन्वान के अल्फाज लिखने के बाद मौजू मुख्तसर अल्फाज में दर्ज करें, फिर जनाब आली का लफ्ज़ तीसरी सतर में लिखें। दरख्वास्त का मौजू ज़्यादातर अदालती दरख्वास्तों के सिलसिले में इख्तियार किया जाता है। यानी मौजू या उन्वान जो होता है ना बेटा, वो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह लिखना है आपने। कुछ चीज़ें होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, वहाँ वो ज़रूरी हो जाता है, लेकिन हर जगह पे ज़रूरी नहीं है। हाँ, आप बेटा लिख दें तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, नहीं लिखेंगे तो कोई हरज नहीं है। नई सत्र का आगाज बेटा गुजारिश है से आगाज करें। देखिए गुजारिश है, जब आपको बेटा पता है जनाब आली, इमला की गलतियां ना करें, ठीक है। इसमें मैंने देखा है जनाब आली जो है, इसमें भी बच्चों की इमला की बहुत गलतियां होती हैं। फिर इसी तरह से गुजारिश है से जब आप आगाज करते हो तो इमला की गलती को आप कंट्रोल कर सकते हो। दरख्वास्त की गर्ज़ो गायत मुख्तसर जामे और मौसर अंदाज में लिखी जाए। अब बेटा ये जो तारीख होती है ना, ये भी बच्चे यहाँ पे बहुत गलती कर जाते हैं। दरख्वास्त के आखिर में तारीख दाएं हाथ हाशिए के आगाज पर हो, तारीख उर्दू में डाली जाए। जैसे ये देखें बेटा, ये उर्दू में आपकी लिखी हुई है, डेट जो है तारीख 13 जुलाई 2016 ईस्वी। ये बेटा आपने कॉमा जो है या इसको सख्ता बोलते हैं, ठीक है, ये जरूर लगाना है। यहाँ पे मैंने नुक्ता रह गया है सन का, वो भी लगाना है और खत्मा भी लगाना है, ठीक है। मोरखा लिखें, दो डॉट्स राब्ता के लगाएं। 13 जुलाई, आप ऐसा करें बेटा, आपका जो पेपर की डेट है ना, आप उसको याद कर लें और वही वाली डेट आप खत में भी लिखें, आप दरख्वास्त में लिखें, लेकिन उसका एक पैटर्न अपना बना लें। उसी के ऊपर आप बेटा अपनी दरख्वास्त वगैरह लिखें, ठीक है। नेक्स्ट देखें। अब बेटा कुछ दरख्वास्तें नमूने के लिए, यहाँ पे कॉलेज प्रिंसिपल के नाम फीस माफ़ी और तालीमी अखराजात के लिए दरख्वास्त, देहात में मरकजी सेहत के क़याम के लिए ज़िली नाज़िम सेहत के नाम दरख्वास्त। अच्छा, इसके अलावा बेटा एक जो है ना, उस टॉपिक पे आप गौर कीजिएगा। आजकल बेटा आपका जो बहुत एक करंट इशू चल रहा है, आप लोगों को पता है, ये जो आपके हुकूमती सतह पर कुछ लोगों ने नजायज कब्जे किए हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे और बाजारों वगैरह में, उनके हवाले से हो रहा है ना, ये पाकिस्तान में ये सिलसिला शुरू हुआ हुआ है सफाई का और सड़कों के ऊपर। बेटा उसको नजायज तजावजात बोलते हैं, ठीक है।
तो करंट इश्यूज जो होते हैं ना, ये आप लफ्ज की इमला देख लें। यानी नाजायज कब्जा कर लेना, तजावज करना, हद से बढ़ जाना, ठीक है। नाजायज तजावजा ये बहुत अहम इशू है आपका। इंक्रोचमेंट भी इसको कहते हैं मेरा ख्याल इंग्लिश में बेटा। तो ये आप इंग्लिश में भी करें इसको तैयार, और उर्दू में भी आपको इसके हवाले से बेटा, ये मौजू के हवाले से तैयार रखना है अपने आप को। इसमें आपको कम से कम यहाँ से बेटा मेरे से थोड़ी सी वो लिखा गया, ये आएगी, ठीक है। नजायज तजावीज़ात, बेटा यहाँ ये जो मौजू है ना, इसके बारे में नॉलेज आपका होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस पे बेटा आजकल के जो चल रहा है ना करंट इशू, दरख्वास्त ये पहले भी आती रही है, कई दफ़ा आ चुकी है पेपर्स में, बच्चों को एग्जाम्स में। तो सड़कों वगैरह पे जो रेहड़ियाँ वगैरह बढ़ा लेते हैं, आपको आइडिया है बेटा? किसी को तो मुझे बताएं इसके बारे में। आप में से कोई भी बेटा बता सकता है इसका, जो भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, शेयर करें आप लोग। जी अब्दुल्ला बेटा, आज आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप सारे मौजूद हो? बेटा मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? आप लोगों का रिप्लाई नहीं आ रहा। जी मैम आ रही है। आ रही है। बेटा आप लोग बिल्कुल हेजिटेशन ना किया करें, आपके माइंड में जो क्वेश्चन हो वो आप जरूर पूछा करें, फायदा तब है बेटा इस क्लास का, ठीक है। आप लोग बताएं कि आप लोगों को नॉलेज है इसके बारे में, नाजायज तजावजात के हवाले से। ये जो बेटा मैम हुकूमती। जब जी जी बोले। मैम जब घर बनाते हैं तो गाड़ी अंदर करने के लिए जो छोटी सी ढालवान बनाते हैं, वो अक्सर लोग अपनी जो गली होती है, जो गली का हिस्सा होता है उसमें बनाते हैं ना। जी जी, वेरी गुड। वो और भी उस इसमें जी आती जी, है ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैम नाजायज दुकानें होगी, जिस तरह नाजायज कोई भी शेड हो गए वगैरह जो लोग निकाल देते हैं, इसमें वही आती हैं सड़क पे, जो उनका हिस्सा नहीं होता। जी जी, तो बेटा इसकी वजह से आप बताएंगे कि ये एक प्रॉब्लम है, और उस पे बहुत सारे मसाइल भी तो होते हैं ना। मसाइल क्या हो सकते हैं उसमें? मसाइल यानी उससे, हाँ। मैम जी, ट्रैफिक वगैरह होगी, लोगों के लिए चलने के लिए जगह नहीं है, इस तरह की मसाइल होगी मैम। ये सारे मसाइल हो गए। तो बेटा आप अपने इलाके के हवाले से लिख सकते हो। अब इलाका तो हमने लिखना नहीं होता, ठीक है। वहां पे आप लोगों ने जो होता है ना, ये फर्जी लिखना होता है, ठीक है। इसके लिए ना आपको मैं कुछ बेटा ये चीज़ें गाइडलाइंस दूंगी, आप वो लिख दें। क्योंकि ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र से ये लिखना कि आप कहाँ से हो, किस कॉलेज से हो या इदारे से हो, ये ठीक नहीं है, ठीक है। आप उसकी बजाय जो है ना, शहर की जगह पे या अपने कॉलेज के नाम की जगह पे आप बेटा लिखें। ये तो खैर मैंने अपनी क्लास के लिए बनाया हुआ था ना, तो थोड़ा बेटा उर्दू में लिखना क्योंकि मुश्किल होता है, तो फिर मैं एक्सप्लेनेशन साथ साथ कर देती होती हूँ गलती वगैरह। बेटा यहाँ देखें, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब, और ये 2000 मैंने आप लोगों को बताया था ना, 16 की प्रेजेंटेशन है, ये उसी वक्त की बनाई हुई है। बेटा बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब, फजाइया डिग्री कॉलेज, जिला जंग है ना, तो यहाँ बेटा आपने काम करना है, इसकी बजाय आप जिला लिखें, लेकिन यहाँ पे अलिफ, बे और जीम लिख दें। अब किसी को क्या पता कि आपका ताल्लुक किस जगह से। अब लेकिन अगर फजाइया डिग्री कॉलेज भी लिखा है ना आपने, तो इसकी बजाय आप डिग्री कॉलेज लिखते हैं। डिग्री कॉलेज तो हर जगह पे होता है, फजाइया भी खास तौर पे मेंशन कर रहा है, लेकिन आप सिर्फ डिग्री कॉलेज अलिफ बे जीम लिखते हैं। अब जनाब अली के हवाले से बेटा एक गलती करते हैं आप लोग, ये वाला लिखते हैं अक्सर इमला, ये वाला, ये आला होता है, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे नीचे जेर आती है जनाबे आली, और ये क्योंकि मुखातिब किया गया है, ये सारा एक बेटा किसी को मुखातिब करना है। अच्छा हाँ, यहाँ भी बेटा ये ठीक करें
یہ بھی مخاطب کیا ہے پرنسپل صاحب کو یہ والی علامت یہاں استعمال کریں. یہ ندائیہ کی علامت یہاں پہ استعمال کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد گزارش ہے کہ فدوی آپ کے کالج میں سال اول میں زیر تعلیم ہے سے. ٹھیک ہے. مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے اور 3 بھائی اور 2 بہنیں بھی کالج اور اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں. والدین صاحب مزدور پیشہ ہیں. انہیں اکیلے ہی ہمارے گھریلو اور تعلیمی اخراجات برداشت کرنے پڑ رہے ہیں جو آج مہنگائی کے دور میں بہت مشکل ہے. برائے مہربانی میری کالج فیس معاف کی جائے. نیز کتابوں کی خریداری اور یونیفارم کے لیے بھی کالج فنڈ سے امداد دی جائے. اب بیٹا یہاں پہ دیکھیں العارث لکھنا ہے. ایک چیز یہاں پہ مسنگ ہے. یہ کچھ چیزیں بیٹا میں اس لیے بھی چھوڑتی ہوتی ہوں کہ بچوں سے میں نے پوچھنا ہوتا ہے کہ یہاں کیا مس ہے. جی آپ بتائیں بیٹا. آپ کی آپ کی نوازش نوازش ہوگی. گڈ. آپ دونوں نے ٹھیک بولا ہے بیٹا. اس میں نا ایک غلطی کرتے ہیں بچے. وہ کیا کرتے ہیں وہ بتائیں آپ لوگ. آپ کی این لگا دیتے ساتھ. ہاں جی ویری گڈ. آپ نے بہت اچھا بولا بیٹا. اس میں کیا ہونا چاہیے؟ آپ کی نوازش ہوگی. یا تو بیٹا آپ کی لکھے کیونکہ این کا مطلب ہی آپ کی ہے. ٹھیک ہے. یا این نوازش لکھ دیں یا آپ کی لکھ دیں. یہ 2 آپشن ہے لیکن دونوں اکٹھے نہیں لکھیں آپ لوگ. جیسے ہم وہ کہتے ہیں نا کو ہمالیہ کے پہاڑ, تو وہ آپ کی یہ روزمرہ کی غلطی اور آپ لوگ کرتے ہو نا اس میں جملے کی ساخت اور بناوٹ میں جب غلطیاں آتی ہیں تو یہاں بھی یہ والی غلطی آپ کرتے ہو. ساخت اور بناوٹ کے حوالے سے بھی بیٹا مجھے یاد کروائیے گا. کسی لیکچر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. اس کے حوالے سے بھی ایک SLO ہے آپ کا. تو یہاں بیٹا آپ یا تو آپ کی لکھ دیں آپ کو جو ایزی لگتا ہے, یا پھر آپ عین نوازش ہوگی. یہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے بیٹا کہ آپ کسی سے کام لے رہے ہو, آپ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہو. ٹھیک ہے. یہ لکھ دیں, آسان لگ رہا ہے آپ کو تو. اور اس کے بعد بیٹا ہوگی یہاں پہ بیٹا آپ نے ختمہ ضرور ڈالے. یہ بیٹا میں نے موز و کاف جو ہوتے ہیں نا ان پہ فوکس ضرور کرتی ہوں بچوں کی. میں ایک یہ جب کلاس میں پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت بیٹا میں ایک غلطی بھی کاؤنٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے. رموز و کاف کی حتیٰ کہ یہ ختمہ بہت معمولی سی چیز ہے لیکن میں اس کو نہیں کرتی ایگری. تو بیٹا اس لیے کہ یہ چیزیں آپ کے رموز و کاف بیٹا چیک ہونے ہیں آپ کے پیپر میں. ٹھیک ہے. الارث یہ درمیان میں لکھ دیں یا آپ یہاں بیسیکلی الارث کا مطلب ہوتا ہے درخواست دینے والا. اچھا ہاں یہاں پہ جو ہے نا یہ تابع دار کی املا کی غلطی بچے کرتے تھے. ٹھیک ہے. آپ کا شاگرد لکھ دیں سمپلی. اگر آپ نہیں لکھ سکتے تابع دار غلط نہ لکھیں. ٹھیک ہے. اور یہ الف ہے, الف بے جیم. یہ ہوتا ہے بیٹا اپنا نام وغیرہ کی جگہ پہ آپ نے لکھنا اور یہ ختمہ کی علامتیں ضرور ڈالنی ہے. اچھا ہاں یہ بیٹا آپ کے رموز و کاف میں مخففات ہے. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو لکھ رہی ہوں. اس کو ایبریویشنز بھی کہتے ہیں لیکن یہ مخففات اردو میں بولا جاتا ہے. ختمہ کی علامت لگا کے یہ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد بیٹا یہ جو ڈیٹ ہوتی ہے نا یہ آپ کی یہاں آنی چاہیے. یہ ظاہر ہے بیٹا وہ لکھتے ہوئے پرابلمس ہے تو یہ تھوڑا اوپر اسی لائن میں اس سائڈ پہ لکھیں. لیکن آپ کا جو مورخہ لکھیں 13 جولائی. اسی طریقے سے یہ سن 2025 لکھ دیں یہاں پہ آپ عیسوی. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا ختمہ. یہ والی ڈیٹ جو ہے نا یہ بیٹا آپ اردو میں لکھیں. اس کی غلطی نہیں ہونی چاہیے. اب بیٹا یہ چھوٹی سی ایک 5 نمبر آپ کے اس کے بنتے ہیں. تھوڑی سی ایفرٹ سے سارے رموز و کاف کا جب آپ خیال رکھیں گے تو آپ کے نمبر کون کاٹے گا بیٹا؟ کوئی بھی نہیں کاٹ سکتا. ٹھیک ہے. آپ کے یہاں سے بھی نمبر کٹتے ہیں. آپ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا ہے. ایک دفعہ پریکٹس کر لیں آپ کو بہت اچھے طریقے سے ساری چیزیں یاد ہو جائیں گی. جی بیٹا عبداللہ آپ کا کوشچن ہے, پوچھیں بیٹا. میم میم یہاں پہ یہ رائٹ پہ الارث ہے میم. یہ تو لیفٹ پہ آئے گا نا اور اس کے سامنے بالکل مورخہ آئے گی. کیا بیٹا میم یہ الارث آپ رائٹ پہ یہاں آیا کہہ ہوا رہے ہو؟ ہے. یس میم. اور اس کے سامنے مورخہ, تو میم وہ ٹھیک ہوگا. نہیں بیٹا اس کے سامنے میرا جو پیٹرن ہوتا ہے نا بیٹا جس پہ ابھی تک الحمدللہ جو بچوں نے, ہاں مجھے یاد آ گیا مقدس سے میں نے کہا تھا آپ جوائن کرنا, میں آپ کو سینڈ کروں گی. تو ابھی آپ کا کتنا ٹائم باقی ہے؟
मैं उसको शेयर कर देती हूँ। अगर बेटा देखिए, मैं बेटा इसी पैटर्न पे करवाती हूँ बच्चों को। इसका एक खास जो है ना मकसद होता है लॉजिकली, ठीक है, तैयारी जो करवाती है। अब कुछ जगहों पे आपकी दरख्वास्त वगैरह मुख्तलिफ उसमें लिखी हुई है, तरीकों से, गाइड बुक्स पे, हर जगह पे डिफरेंट बेटा तरीके हैं हर एक के, ठीक है। लेकिन मैंने हमेशा बेटा इसी तरीके को की है अप्रोच, इसी से सारा जो है ना। तो अब डिपेंड करता है बेटा आप, लेकिन ना इसको करें ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें हर चीज लॉजिकली आपकी मौजूद है। ओके मैम, थैंक जी यू। बेटा, मैं इसी को करवाती हूँ। बाकी देखें, मुझे पता है टीचर्स मुख्तलिफ तरीकों से करवा रहे हैं, लेकिन मैंने बेटा हमेशा इसी तरीके को अपने बच्चों को करवाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह के उनके हमेशा अच्छे नंबर आए हैं। कभी भी नहीं हुआ आज तक के, अल्लाह का शुक्र है बेटा, बच्चों के कहीं पे प्रॉब्लम आया हो, ठीक है। अ, अभी बेटा देखिए, नेक्स्ट आपका है ये एक, आप में से कोई भी रीडिंग करे जरा। जी बेटा, कोई भी आप में से बेटा रीडिंग कर सकता है, ताकि मुझे पता चले बेटा रीडिंग कैसी है आप लोगों की। मैम मैं पढ़ूं? हाँ जी बेटा, आप पढ़े, कोई भी पढ़े बेटा, आप पढ़े, शाबाश पढ़े। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कॉन्फिडेंस लेवल भी अपना साथ साथ डेवलप करें। जी आप पढ़े बेटा। गुजारिश है कि हमारा गांव जी गुजारिश है कि हमारा गांव कमोबेश 4000 न- नकोश पर मुश्तमिल है। गांव में हाई स्कूल, डाकखाना, पक्की सड़क और टेलीफोन को सहूलत भी मौजूद है, मगर महकमा सेहत ने अभी तक यहाँ मरकज़ सेहत कायम नहीं किया, जिसकी वजह से गांव के लोगों को बहुत तकलीफ का सामना है। गांव के मुख्तलिफ हिस्सों में अदाई लोग गांव के लोगों की सेहत से खेल रहे हैं। दिन के वक्त तो अक्सर बीमार लोग शहर का रुख करते हैं, मगर रात को हंगामी सूरत हाल में अक्सर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और अक्सर मरीज तबी इमदाद ना मिलने की वजह से रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। गांव के 15-16 किलोमीटर जी 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 बेटा पढ़। अहाता में अहाता में कोई मरकज़ सेहत नहीं है। हम गांव के लोग मरकज़ सेहत के लिए कम से कम 2 एकड़ मुफ्त ज़मीन मुहैया करने के लिए तैयार हैं। बराह मेहरबानी जल्द से जल्द हमारे गांव में मरकज़ी मिनट बेटा, मुझे कॉल आ रही है मुकद्दस की, मैं चाहती थी कि वो क्लास ज्वाइन कर ले। अब जूम है उसके पास या नहीं, तो आपकी मैं बात करवाना चाह रही थी, ठीक है। बेटा मैंने आईडी नंबर सेट किए, 1 मिनट मैं देखती हूँ बेटा, अगर हुई तो, अगर बेटा उसका ज्वाइन कर लिया तो फिर इंशाल्लाह बात होगी, ठीक है। आपसे भी मैं करवा दूंगी, जो भी क्वेश्चन पूछना आप पूछिएगा आप लोगों को, ताकि मोटिवेशन के लिए बेटा, मैंने उस बच्ची से कहा था। इन तमाम बातों को बेटा अगर आप करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपका अच्छा रिजल्ट। देखिए यहाँ आपने चेंज बेटा यही करना है, महकमे को चेंज कर दें। यहाँ देखें नाज़िम साहब का नाम आ गया प्रिंसिपल साहब की जगह, और यहाँ पे बेटा ये चीज़ आप कर दें, ठीक है। ये थोड़ा सा अलामत का ख्याल रखें। ये कुछ चीज़ें ना उस वक्त बेटा मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं थी उर्दू में, टाइपिंग में, तो ये उस वक्त मैं सीख रही थी इनिशियल बेसिस पे, ठीक है। और आपके लिए भी ये एक मोटिवेशन है कि आप लोग भी बेटा अगर मुश्किल मिजाजी से लगे रहे ना, स्किल्स को जरूर सीखिएगा। आप हर चीज की स्किल एक जरूर ले, ठीक है। अब आगे देखिए बेटा, गुजारिश है कि हमारा गांव पेज ये जो है कम, यहाँ देखिए यहाँ भी मेंशन नहीं किया, कमोबेश 4000 नफूस आएगा यहाँ पे, ठीक है, नफूस
यानी लोग अफराद पर मुश्तमिल है। गांव में हाई स्कूल, डाकखाना, पक्की सड़क और टेलीफोन की सहूलत भी मौजूद है, मगर महकमा सेहत ने अभी तक यहाँ मरकज़ सेहत कायम नहीं किया, जिसकी वजह से गांव के लोगों को बहुत तकलीफ का सामना। ये बेटा आप का सिर्फ यहाँ पे चेंज आना है, बाकी यहाँ आप सिर्फ नाज़म साहिब का वो नाम है तो यहाँ आप उस बंदे का नाम लिखेंगे जिसके, लेकिन ये जो बाकी चीजें हैं ना उनको आपने फॉलो करना है, आप उनको आपने इंस्ट्रक्शंस को। यहाँ बेटा फिदवियाने अहले, जी बेटा अली हैदर आपका क्वेश्चन है कोई? मैम हम लोग 9-10 के अंदर सिटी मेंशन नहीं थे करते, वाजे नहीं थे करते कि किस इलाके के लिए लिख रहे हैं, जैसे अलिफ बे जीम बस। तो यहाँ पे हमने वाजे करना है कि हम किसको लिख रहे हैं। जैसे अगर कोई कॉलेज के मुतालिक आती है कि सर्टिफिकेट निकालने के लिए कॉलेज नहीं के नहीं प्रिंसिपल बेटा के आप नाम नहीं लिखे हैं। लिखोगे, नहीं मेंशन नहीं करोगे, यही चीज बेटा मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो बेटा ये मुकद्दस ने ज्वाइन कर ली है। जी मुकद्दस बेटा आप ये जरा बच्चों से बात करें और उनको बताएं। हाँ ये बेटा जी बेटा इनको बताएं जरा अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेशन के लिए कि आपने कैसे 100/100 मार्क्स लिए। आवाज आ रही है मैम मेरी? जी बेटा आ रही है आपकी आवाज। पहले तो सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मैं कल भी मैम को ये बता रही थी कि 100 नंबर कुछ लेना ऐसा ये नहीं कि अचानक से हुआ है, ये सब कुछ ना मैम की मेहनत है, मैम का इखलाक, मैम का प्यार और मैम की मेहनत। और मैम जिस लगन से पढ़ाती है ना, तो मैम अपने स्टूडेंट से यही चाहती है कि जिस लगन से मैं पढ़ा रही हूँ ना, मेरा बच्चा भी आगे उतना ही मुझे रिस्पॉन्स दे। तो मेरा ये था कि मेरी ना मैम से दिल लगी काफी हो गई थी, मैं एक एक छोटी छोटी चीज मैम से पूछती थी जाकर, और एक छोटी छोटी चीज ना बैठ के नोट करती थी मैं, कि अगर मैम कुछ लाइन बोल भी रही है ना तो मैं वो भी लिखती थी। तो बस उसकी वजह से ही मैं अपने रजिस्टर भरती, मैं किसी सब्जेक्ट का नहीं इतना लिखती थी जितना मैं उर्दू का लिखती थी। तो बस उसका इतना वो हुआ है। और मैम ने जो एमसीक्यूज तैयार करवाए थे हमें, मैम ने हर पेपर तैयार करवाया था, चाहे एसएल हो चाहे पिछले पास्ट पेपर्स हो, बस उनको एक नजर देखा है कि पहले मैम ने काफी तैयारी करवाई हुई थी। तो हर मैम का लेक्चर लेना और मैम की एक एक चीज नोट करना, बस यही। और मैम की ग्रामर मैंने बहुत अच्छी पिक की थी, जैसे मैम करवाती हैं, जैसे मैम अभी करवा रही है। बस कि मैम की ये जो, बस मैं सबको यही एडवाइस दूंगी कि मैम जो पढ़ा रही होती है ना, वो आप लोग सब कुछ नोट किया करो। और जब जिस दिन पेपर हो या कोई भी पेपर हो, आप वो लोग रजिस्टर खोल के बैठा करो कि उस दिन उस लेक्चर में मैम ने क्या क्या बोला था और मैम ने बोर्ड पे क्या लिखा था। जो मैम की बोर्ड की समरी होती है, सबसे जरूरी चीज ये है। मैम कुछ आप पूछे। बेटा आप बच्चों को बताएंगे बोर्ड समरी में कैसी लिखती थी, क्या करती थी हाँ, बोर्ड? बोर्ड समरी जैसे अभी जनाबे आली है ना, इसके आगे जो अलामत लगाई हुई है, और जनाबे आली के जैसे जेर है, और इसको बकायदा सर्कल करके फिर एक लाइन लगा के फिर मैम लिखती थी कि ये क्या चीज है, फिर आली के आगे जो अलामत है फिर इसको सर्कल करके लाइन करके मैम लिखती थी। और ऐसी ऐसी हर चीज, और वैसे ही सेम चीज आप लोग ना पेज पे नोट किया करो और लिखा करो कि जैसे मैम लिखती हैं, और वही चीजें वहीं से याद रह जाती हैं। और फिर जब जिस दिन पेपर वगैरह हो या कोई टेस्ट वगैरह, तो वही खोल के बैठा करो, उसी को देखा करो, और वो जहन में बात रह जाती है, क्योंकि पहले आपने लेक्चर लिया होता है, उसके बाद लिखा होता है, तो बात जहन से निकलती नहीं है। और बेटा आप लोग भी अगर मुकद्दस से कुछ पूछना चाहते हैं ना और तो आप लोग भी सलाह पूछ कोई लीजिए। है, उसका क्वेश्चन आया है तो उसका मैसेज है जी। आप भी बेटा पूछ सकते हैं क्वेश्चन। जी बेटा अली हैदर आप क्या पूछना चाह रहे हैं? पेपर के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंस नॉलेज की होती है या हैंड राइटिंग की? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको आता सब कुछ है, उनकी नॉलेज भी बहुत अच्छी होती है, तशरीहात करना, कवायद वगैरह सब कुछ, लेकिन उनकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से उनका पेपर का जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना वो भी इतना अच्छा नहीं पड़ता, जबकि उन्होंने बहुत अच्छा लिखा होता है अपनी तरफ से, यानी कि एफर्ट पूरी पुट की होती है।
हाँ बिल्कुल, ये भी है। उसका ये होता है कि आप ना मार्कर सबसे ज्यादा यूज कर लिया करो, या कोई हेडिंग है उसको ना मार्कर से प्रोमिनेंट कर दिया करो, क्योंकि आप अच्छी बात शुरू कर रहे हैं ना, उसकी जो पहली उस चीज की जो कहते हैं ना बेस होती है, उसको आप हेडिंग के तौर पर लिख दिया करो। अब होता है अक्सर के काफी राइटिंग बुरी होती है, लेकिन उसका पता है ये हो जाता है कि आपने उसको हेडिंग में कर दिया करो, और अगर क्वेश्चन खत्म हो रहा होता है नीचे लाइन लगा दी, फिर अगला क्वेश्चन। अगर राइटिंग आपकी गंदी भी है ना, तो आपको मतलब अगले को पता चल जाएगा भाई क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो रहा है और इस क्वेश्चन का इतना आंसर है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया, अब अगला शुरू हो रहा है। किसी की तो इतनी राइटिंग गंदी होती है ना, पता ही नहीं चल रहा होता कि अगला सवाल कहाँ से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा है। उसका भी यही हल है कि उसको आप मार्कर से सही तरह प्रोमिनेंट करो, और जहां चीज खत्म हो जाती है वहां लाइन लगा दो अच्छी स्केल से नीचे, और फिर अगला क्वेश्चन और उसका आंसर शुरू करो। और मैं तो ऐसे ही करती थी, ताकि जब कोई पेपर चेक करो ना, तो ताकि उसको आसानी हो और उसको हर चीज आपकी वाजिया हो रही हो। जी बेटा, और कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है? तशरीह में बेटा आपने क्या पूछा है? ये अब्दुल्ला, वो रेफरेंसेस वगैरह के हवाले से बता दे बेटा इनको तशरीह में। रेफरेंस ये होता है कि मैंने तो अपनी ये जो मेरे इसमें 100 मार्क्स आए थे ना, इस पेपर की तशरीह मैंने ऐसे की थी कि 4 लाइनें होती है ना, 4 लाइनें उसको मैंने लिखा था एक पेज पे, 2 लाइनें ऊपर मैंने जो शेर आया हुआ था पहले वो लिखी, वो मैंने लिखी थी ब्लैक मार्कर से। उसके बाद नीचे लिखी तशरीह करके, लिखा मैंने ब्लू मार्कर से। उसके बाद मैंने तशरीह मैंने की थी 7 से 8 लाइनों की। उसके बाद जो उस मतलब उन्होंने शेर दिया हुआ था उसके रेलिवेंट मैंने उसका ना कोई शेर लिखा था, तो मैम ने हमें शेर भी काफी ज्यादा याद करवाए थे। फिर उसके बाद जो सेकंड लाइन थी ना, फिर मैंने उसकी तशरीह शुरू की थी। फिर मैंने 7-8 लाइनों की तशरीह की, एंड पे मैंने 2 लाइनें बचा के उसके अकॉर्डिंग फिर उसी एक लाइन के अकॉर्डिंग एक शेर लिखा था, और उस पेज को मैंने ऐसे कवर किया था, अगला पेज भी मैंने ऐसे ही किया था। तभी मुझे लग रहा है कि उसके पास कोई ना वजह ही नहीं थी मेरा नंबर काटने की। तो मैंने एक लाइन पहले उसको 7-8 लाइनों में एक्सप्लेन किया अच्छे से, फिर उसी के हवाले से मैंने एक शेर लिखा है। फिर उसके बाद मैंने सेकेंड लाइन को 7 से 8 लाइनों पे एक्सप्लेन किया, फिर उसी के हवाले से मैंने 2 लाइनों का शेर लिखा इस वजह से। बेटा स्मार, आप क्या पूछना चाह और रहे? जी बेटा स्मार। मैम मैंने ये पूछना था कि अब जैसे हम लोग फेडरल में हम लोगों का पेपर होता है, तो हम लोगों के पास एक शीट होती है, तो तशरीह के लिए तो हमारे पास सिर्फ एक ही पेज होता है, एक पेज में हम इतना सब कुछ कैसे लिखेंगे? बेटा नहीं, सब मैं कुछ वही हो आपको जाता है। बता रही हूँ। पेज आप देखना, अगर आप वो अभी दिया होगा ना आपने सेंडर वगैरह, आप पेज देखना। पहले आपने जो 2 6 4 लाइनों का होता है ना, 2 लाइनें होंगी वो पहले ऊपर लिख लेना। उसके बाद अगर 6 7 में 8 बोल रही हूँ, तो आप देख लेना 6 लाइनों पे कर देना। 6 लाइनों पे उसके बाद उसके रिलेटेड शेयर कोई अच्छा हो, सॉलिड हो, वो लिखना। फिर उसके बाद भी देखना आपके पास काफी ज्यादा लाइनें बचेंगी, फिर उस दूसरी लाइन को दोबारा शुरू करके उसकी एक्सप्लेनेशन, फिर एंड पे आपने खुद 2 लाइनें बचानी होती हैं। फिर उससे शेयर लिख के, फिर नीचे मैंने लाइन भी लगाई थी प्रोमिनेंट कि वो पेज इतना वो मैंने, और मेरी थोड़ा सा राइटिंग भी बड़ी बड़ी थी, फिर भी मैंने उसको किया, और उसी पेज पे उन 2 लाइनों को ऐसे करके लिखा था मैंने। दोनों मिसरों की बेटा वो अलग। भी आपको, जी जी वो आपको भी लग रहा है कि वो पेज छोटा है, लेकिन आप तो जब देखोगे ना ये शेर की, तो वैसे भी लाइनें छोटी छोटी होती है, तो वो हो जाता है कवर। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन? जी मुकद्दस बेटा, जी कोई पूछना चाह रहा है बेटा? कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं आप लोग बेटा। जी बेटा अब्दुल्ला पूछे। मैम मेरा एक और क्वेश्चन है। जी जी पूछे। अब हम लोगों को कॉलेज लेवल पे ना हमारे उर्दू के सर ने उन्होंने खुद पर्सनली मना किया कि तशरीह लिखने के लिए ना आप लोगों ने शेर की तशरीह के वक्त हवाला मतन नहीं लिखना, ना आप लोगों ने अल्फाज के मानी लिखने हैं, शेर के बाद डायरेक्ट तशरीह स्टार्ट कर दें आप। बेटा ठीक कहा लेकिन उन्होंने। जी जी पूछे। चलें ठीक है, लेकिन अब अगर हमें शायर का पता है तो शायर को अगर हम लोगों ने यानी कि मुतल्लिक बताना है कि ये किस शायर ने लिखा है शेर, तो शायर की जिंदगी हालात, तो वो हम हर तशरीह के अंदर शायर का जिक्र करेंगे या सिर्फ पहले तशरीह में डिटेल के साथ थोड़ा, अच्छा हाँ, तो बाकी सही दो सही तशरीहात जो है वो टू द सही पॉइंट। सही क्वेश्चन आपका। जी जी बेटा मुकद्दस आप देंगे या मैं जवाब दूं इसका?
میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے دوں تو میں نے ایسے لکھا تھا کہ جو مطلب آئی تھی نا مطلب تشریح مطلب شعر مطلب شاعر تھا اس کا وہ میں نے لکھا اس کا نام لکھ کے کہہ دیا تھا کہ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے پہلے اس کا نام لکھ دیا تھا. اس کے بعد میں نے اس کے بعد ایک یا دو لائنیں اور ایکسپلین بس کی ہوں گی اتنا ایکسپلین نہیں کیا تھا میں نے شاعر کا. وہ میں نے زیادہ بیٹا فوکس شعر کو کیا تھا کہ اس میں جی شاعر کیا کہہ رہا ہے. تشریحات میں بیٹا وہی شعری اصطلاحات صنعتیں وغیرہ جی جو بھی چیزیں. تو جی دوسرا بیٹا سنت جی میم جی سوری آپ کو کٹ کیا لیکن نا میم اس میں نا ایک شعر میں نا 2 سے زیادہ صنعتیں وغیرہ استعمال نہیں ہوتی تو وہ 2 یا 3 لفظ آپ ایک ایک لائن میں یا لکھ دو. جائے مرکب اضافی زیادہ تر یوز ہوتا تھا تلمی یوز ہوتا ایسے یوز ہوتے تھے زیادہ اس میں چیزیں یوز نہیں ہوتی میم اب یہ جن مقدس کو ہم تمہیں یاد آ رہا ہے نا بیٹا ابھی آپ لوگوں کو میں یہی چیزیں بتا رہی ہوں نا ساری کہ یہ چیزیں آپ مینشن کریں شاید. جی السلام علیکم بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام میم ٹھیک ہے. وعلیکم السلام میم. بیٹا آپ لوگوں کو اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ جی یس مس. میم. اچھا بیٹا آپ لوگوں نے جو پچھلے لیکچرز لیے ہیں آج میں ان کا ٹیسٹ نہ لے لوں آپ لوگوں سے؟ مس آپ کو جیسا لگے. آپ کے بیٹا آپ لوگوں نے وہ سارے لیکچرز جو ہیں وہ تیار کر رہے ہیں ریگولر بیسس پہ یا نہیں؟ مس کر رہے ہیں. بیٹا آپ مجھے رپلائی نہیں دے رہے. جی فرحان آپ نے فرسٹ ٹائم لیے کوئی مسئلہ نہیں بیٹا یہ اس کے لیکچر سارے آپ ان کے ریکارڈڈ پڑے ہوئے ہیں ساری کلاسز کے ریگولر آپ لوگ ٹھیک ہے کریں اس کو. تو باقی یہ بچے کچھ لے رہے ہیں ریگولر بیسس پہ یہ مجھے نظر آ رہے ہیں ان کے نیمز کیونکہ نیمز ان کے ایڈ ہے میرے پاس ٹھیک ہے. اچھا بیٹا چلیں آج میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ٹاپک تھوڑا سا میرا تھا کہ آپ لوگوں کو گرامر کے حوالے سے کچھ چیزیں کروا دوں. آج آپ لوگ بتائیں یا اگلی نظم کرواؤں؟ آج میں آپ لوگوں پہ چھوڑتے ہیں یہ میرے کچھ بچے جو ہے نا ریگولر جو لے رہے ہیں کلاس. جی عبداللہ بیٹا آپ بتائیں. مس آپ کو جیسے صحیح لگے کہ گرامر زیادہ ضروری ہوگا ہمیں یا پھر نظم. جی بیٹا مس میں کہہ رہا ہوں جیسا آپ کو صحیح لگے آپ کروا رہے. اچھا ٹھیک ہے. اصل میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کی وہ تیاری کر رہے ہو آپ ایک ریگولر آپ لوگوں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے تو اس میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو یہ انیشیٹیوز ملنے چاہیے نا آپ کے تھوڑے سے ٹیسٹ ویسٹ بھی میں ساتھ تھوڑا سا تیاری کرواؤں آپ کو. تو بیٹا اس میں ابھی میں ایک فائل دیکھ رہی تھی ڈھونڈ رہی تھی وہ مل جاتی ہے تو میں نا آپ کو پیپر کی ٹھیک ہے وہ میں آپ لوگوں کو بیٹا کرواتی ہوں ٹھیک ہے. اچھا بیٹا یہ درخواست کے حوالے سے ذرا نکالتے ہیں ٹھیک ہے. آج ایک بچے کا سوال بھی تھا آپ کو بیٹا درخواست بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. سکرین پاز ہو گئی ہے ٹھیک ہے. یہ آپ کا بیٹا 5 نمبر کا کریٹیو رائٹنگ ہے آپ کی ٹھیک ہے.
वैसे तो मैंने इसकी एक वीडियो अपलोड की हुई है ताकि आप लोगों को बेटा वो ओवरऑल सारे बच्चे जो है इसको कर सकें, लेकिन ये एक प्रेजेंटेशन के ज़रिए बेटा मैं आप लोगों को आज बताती हूँ। इसमें दरखास्त का बेटा एक तो आपको पता है कि ये किस जुबान का लफ्ज़ है? नहीं अरे मिस। जी बेटा, मिस में कह रहा हूँ नहीं पता। बेटा ये फारसी जुबान का लफ्ज़ है, ठीक है। ये अस्त का लफ्ज़ जो आता है ना, दार का मतलब होता है मैं, खू का मानी होता है ख्वाहिश, अस्त है यानी मेरी ख्वाहिश है। तो जाहिर है बेटा हम जब किसी के पास दरख्वास्त लेके जाते हैं तो अपनी ख्वाहिश ही लेके जा रहे होते हैं ना। जो आपकी ख्वाहिश होती है वही आप लेके जा रहे होते हो, ठीक है। अब ये फारसी जुबान का लफ्ज़ है आपका, ठीक है। इसमें देखें आपको जो क्वेश्चनिंग हो सकती है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल कौन कौन से हैं जिनके ऊपर ये दरख्वास्त आपको लिखने के लिए आ सकती है। ज़िंदगी के इन इज्तमाही पेश आने वाले मसाइल का हल कैसे तलाश किया जाए, और किसी इज्तमाही मसले की तवज्जो अगर किसी महकमे की तरह दिलवानी हो तो क्या तरीक़ा कार इख्तियार करना चाहिए, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा इसमें बेटा आप देखें तो वो तरीका है दरख्वास्त का। ये आपका बेटा आ गया कि फारसी जुबान का लफ्ज़ है लुग़वी मानी और इस्तिलाही मानी। बेटा लुग़वी मानी आप बताएं मुझे, दरख्वास्त का क्या हो सकता है? अभी मैं आप लोगों को बता भी चुकी हूँ बेटा। यानी आप किसी के सामने जाके कोई अर्ज पेश करते हो, कोई गुजारिश करना किसी से, कोई अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी, ठीक है। लेकिन इस्तिलाही मानी में ना ये आप इन पॉइंट्स को नोट करें, ठीक है। दरख्वास्त में ज़ाती मसाइल का जिक्र और हल तजवीज़ करना, दरख्वास्त में इज्तमाही मसाइल का जिक्र और हल तजवीज़ करना। अब आपने जब लिखना है ना तो आपने कोई बेटा मसला अगर बयान करना है तो उसका हल भी बताना है उस दरख्वास्त के अंदर, ठीक है। हल जिसके इख्तियार में होता है इसे दरख्वास्त लिखना। अदालतों में इंसाफ के हसूल के लिए जो दावा दायर किया जाता है वो भी दरख्वास्त के ज़रिए किया जाता है। आपने कोई भी काम करवाना है तो उसके लिए आपका दरख्वास्त लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब देखें, अब इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। दरख्वास्त लिखते वक्त अच्छे कागज़ का इंतखाब किया जाए, दाएं हाथ मुनासिब हाशिया रखा जाए। अब ये वाली रिक्वायरमेंट तो बेटा आपकी पूरी हो गई ई शीट की वजह से, ठीक है। और उन्होंने आपको बता दिया कि इस लाइन से आप अगर एक वर्ड भी आपका दूसरी तरफ जाएगा तो आपका काउंट नहीं होगा, ठीक है। जिस अफसर के नाम दरख्वास्त लिखनी मकसूद हो उसका ओहदा और महकमे का नाम लिखा जाए और कोशिश की जाए कि ये सब कुछ एक सतर में पूरा हो जाए। बेटा ये कुछ बच्चों का सवाल होता है कि ये कितना होना चाहिए या कैसे होना चाहिए, तो ये चीज़ आप नोट करें। अगर दूसरी सतर की ज़रूरत महसूस हो तो दूसरी सतर का इतना ही हिस्सा इस्तेमाल किया जाए जितना ज़रूरी हो, यानी वस्त या वस्त से भी कम इसे दाएं से बाएं को शुरू किया जाए। अब बेटा ये एक सवाल है, यहाँ पे अलकाब के लिए आमतौर पर जनाब आली का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है।
यहाँ देखें नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं आपके, कभी कभी दरख्वास्त का मौजू भी लिख दिया जाता है ताकि मुतल्लिका अफसर सारी दरख्वास्त पढ़ने की बजाय दरख्वास्त के अनवान को देखकर दरख्वास्त का मौजू समझ ले। मौजू या उन्वान के अल्फाज लिखने के बाद मौजू मुख्तसर अल्फाज में दर्ज करें, फिर जनाब आली का लफ्ज़ तीसरी सतर में लिखें। दरख्वास्त का मौजू ज़्यादातर अदालती दरख्वास्तों के सिलसिले में इख्तियार किया जाता है। यानी मौजू या उन्वान जो होता है ना बेटा, वो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह लिखना है आपने। कुछ चीज़ें होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, वहाँ वो ज़रूरी हो जाता है, लेकिन हर जगह पे ज़रूरी नहीं है। हाँ, आप बेटा लिख दें तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, नहीं लिखेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। नई सत्र का आगाज बेटा गुजारिश है से आगाज करें। देखिए गुजारिश है जब आपको बेटा पता है जनाब आली इमला की गलतियां ना करें, ठीक है। इसमें मैंने देखा है जनाब आली जो है इसमें भी बच्चों की इमला की बहुत गलतियां होती हैं। फिर इसी तरह से गुजारिश है से जब आप आगाज करते हो तो इमला की गलती को आप कंट्रोल कर सकते हो। दरख्वास्त की गर्ज़ो गायत मुख्तसर जामे और मौसर अंदाज में लिखी जाए। अब बेटा ये जो तारीख होती है ना, ये भी बच्चे यहाँ पे बहुत गलती कर जाते हैं। दरख्वास्त के आखिर में तारीख दाएं हाथ हाशिए के आगाज पर हो, तारीख उर्दू में डाली जाए। जैसे ये देखिए बेटा, ये उर्दू में आपकी लिखी हुई है, डेट जो है तारीख 13 जुलाई 2016 ईस्वी। ये बेटा आपने कॉमा जो है या इसको सख्ता बोलते हैं, ठीक है, ये ज़रूर लगाना है। यहाँ पे मैंने नुक्ता रह गया है सन का, वो भी लगाना है और ख़त्मा भी लगाना है, ठीक है। मोरखा लिखें, 2 डॉट्स राब्ता के लगाएं। 13 जुलाई आप ऐसा करें बेटा, आपका जो पेपर की डेट है ना, आप उसको याद कर लें और वही वाली डेट आप खत में भी लिखें, आप दरख्वास्त में लिखें, लेकिन उसका एक पैटर्न अपना बना लें। उसी के ऊपर आप बेटा अपनी दरख्वास्त वगैरह लिखें, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब बेटा कुछ दरख्वास्तें नमूने के लिए यहाँ पे कॉलेज प्रिंसिपल के नाम फीस माफ़ी और तालीमी अखराजात के लिए दरख्वास्त, देहात में मरकज़ी सेहत के क़याम के लिए ज़िले नाज़िम सेहत के नाम दरख्वास्त। अच्छा, इसके अलावा बेटा एक जो है ना उस टॉपिक पे आप गौर कीजिएगा। आजकल बेटा आपका जो बहुत एक करंट इशू चल रहा है, आप लोगों को पता है, ये जो आपके हुकूमती सतह पर कुछ लोगों ने नाजायज कब्जे किए हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे और बाजारों वगैरह में, उनके हवाले से हो रहा है ना, ये पाकिस्तान में ये सिलसिला शुरू हुआ है सफाई का और सड़कों के ऊपर। बेटा उसको नाजायज तजावजात बोलते हैं, ठीक है। तो करंट इश्यूज जो होते हैं ना, ये आप लफ्ज की इमला देख लें। यानी नाजायज कब्जा कर लेना, तजावज करना, हद से बढ़ जाना, ठीक है। नाजायज तजावजा ये बहुत अहम इशू है आपका। इंक्रोचमेंट भी इसको कहते हैं मेरा ख्याल इंग्लिश में बेटा। तो ये आप इंग्लिश में भी करें इसको तैयार, और उर्दू में भी आपको इसके हवाले से बेटा ये मौजू के हवाले से तैयार रखना है अपने आप को। इसमें आपको कम से कम यहाँ से बेटा मेरे से थोड़ी सी वो लिखा गया, ये आएगी, ठीक है, नजायज तजावीज़ात।
बेटा यहाँ ये जो मौजू है ना, इसके बारे में नॉलेज आपका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पे बेटा आजकल के जो चल रहे हैं ना करंट इशू, दरख्वास्त ये पहले भी आती रही है, कई दफ़ा आ चुकी है पेपर्स में, बच्चों को एग्जाम्स में। तो सड़कों वगैरह पे जो रेहड़ियाँ वगैरह बढ़ा लेते हैं, आपको आइडिया है बेटा? किसी को तो मुझे बताएं इसके बारे में। आप में से कोई भी बेटा बता सकता है इसका, जो भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशंस है शेयर करें आप लोग। जी अब्दुल्ला बेटा, आज आपकी आवाज नहीं आ रही। आप सारे मौजूद हो? बेटा मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? आप लोगों का रिप्लाई नहीं आ रहा। जी मैम आ रही है। आ रही है। बेटा आप लोग बिल्कुल हेजिटेशन ना किया करें, आपका माइंड में जो क्वेश्चन हो वो आप जरूर पूछा करें, फायदा तब है बेटा इस क्लास का, ठीक है? आप लोग बताएं कि आप लोगों को नॉलेज है इसके बारे में, नाजायज तजावजात के हवाले से। ये जो बेटा मैम गुमटी। जी जी बोले। मैम जब घर बनाते हैं तो गाड़ी अंदर करने के लिए जो छोटी सी ढालवान बनाते हैं, वो अक्सर लोग अपनी जो गली होती है, जो गली का हिस्सा होता है उसमें बनाते हैं ना। जी जी, वेरी गुड। वो तो और उस इसमें जी आती है ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैम, नाजायज दुकानें होगी, जिस तरह नाजायज कोई भी शेड हो गए वगैरह जो लोग निकाल देते हैं, इसमें वही आती हैं सड़क पे जो उनका हिस्सा नहीं होता। जी जी, तो बेटा इसकी वजह से आप बताएंगे कि ये एक प्रॉब्लम है, और उस पे बहुत सारे मसाइल भी तो होते हैं ना। मसाइल क्या हो सकते हैं उसमें? मसाइल यानी उससे, हाँ मैम, जी ट्रैफिक वगैरह होगी, लोगों के लिए चलने के लिए जगह नहीं है, इस तरह के मसाइल हो गए मैम। ये सारे मसाइल हो गए। तो बेटा आप अपने इलाके के हवाले से लिख सकते हो। अब इलाके तो हमने लिखना नहीं होता, ठीक है? वहाँ पे आप लोगों ने जो होता है ना, ये फर्जी लिखना होता है, ठीक है? इसके लिए ना आपको मैं कुछ बेटा ये चीज़ें गाइडलाइंस दूंगी, आप वो लिख दें। क्योंकि ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र से ये लिखना कि आप कहाँ से हो, किस कॉलेज से हो या इदारे से हो, ये ठीक नहीं है, ठीक है? आप उसकी बजाय जो है ना, शहर की जगह पे या अपने कॉलेज के नाम की जगह पे आप बेटा लिखें। ये तो खैर मैंने अपनी क्लास के लिए बनाया हुआ था ना, तो थोड़ा बेटा उर्दू में लिखना क्योंकि मुश्किल होता है, तो फिर मैं एक्सप्लेनेशन साथ साथ कर देती होती हूँ गलती वगैरह। बेटा यहाँ देखें, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब, और ये 2000 मैंने आप लोगों को बताया था ना, 16 की प्रेजेंटेशन है, ये उसी वक्त की बनाई हुई है। बेटा बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब, फजाइया डिग्री कॉलेज, जिला जंग है ना, तो यहाँ बेटा आपने काम करना है, इसकी बजाय आप जिला लिखें, लेकिन यहाँ पे अलिफ बे और जीम लिख दें।
अब किसी को क्या पता कि आपका ताल्लुक किस जगह से, अब लेकिन अगर फजाइया डिग्री कॉलेज भी लिखा है ना आपने, तो इसकी बजाय आप डिग्री कॉलेज लिखते हैं। डिग्री कॉलेज तो हर जगह पे होता है, फजाइया भी खास तौर पे मेंशन कर रहा है, लेकिन आप सिर्फ डिग्री कॉलेज अलिफ बे जीम लिखते हैं। अब जनाबे अली के हवाले से बेटा एक गलती करते हैं आप लोग, ये वाला लिखते हैं अक्सर इमला, ये वाला, ये आला होता है, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे नीचे जेर आती है जनाबे आली, और ये क्योंकि मुखातिब किया गया है, ये सारा एक बेटा किसी को मुखातिब करना है। अच्छा हाँ, यहाँ भी बेटा ये ठीक करें, ये भी मुखातिब किया है प्रिंसिपल साहब को, ये वाली अलामत यहाँ इस्तेमाल करें, ये नदाया की अलामत यहाँ पे इस्तेमाल की गई है, ठीक है। उसके बाद गुजारिश है कि फिदवी आपके कॉलेज में साले अव्वल में ज़ेर तालीम है से, ठीक है, मुझे तालीम हासिल करने का बहुत शौक़ है और 3 भाई और 2 बहनें भी कॉलेज और स्कूलों में ज़ेर तालीम है। वालिदैन साहब मजदूर पेशा हैं, इन्हें अकेले ही हमारे घरेलू और तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं, जो आज महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल है। बराए मेहरबानी मेरी कॉलेज फीस माफ़ की जाए, नीज़ किताबों की ख़रीदारी और यूनिफॉर्म के लिए भी कॉलेज फंड से इमदाद दी जाए। अब बेटा यहाँ पे देखें अल आरिस लिखना है, एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है। ये कुछ चीज़ें बेटा मैं इसलिए भी छोड़ती होती हूँ कि बच्चों से मैंने पूछना होता है कि यहाँ क्या मिस है। जी आप बताएं बेटा। आपकी आपकी नवाजिश होगी। नवाजिश गुड, आप दोनों ने ठीक बोला है बेटा। इसमें ना एक गलती करते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं वो बताएं आप लोग। आपकी एन लगा देते साथ। हाँ जी, वेरी गुड, बाप ने बहुत अच्छा बोला बेटा। इसमें क्या होना चाहिए? आपकी नवाजिश होगी। या तो बेटा आपकी लिखे, क्योंकि एन का मतलब ही आपकी है, ठीक है, या एन नवाजिश लिख दें या आपकी लिख दें, ये 2 ऑप्शन है, लेकिन दोनों इकट्ठे नहीं लिखे हैं आप लोग। जैसे हम वो कहते हैं ना, को हिमालय के पहाड़, तो वो आपकी ये रोजमर्रा की गलती, और आप लोग करते हो ना उसमें जुमले की साख्त और बनावट में जब गलतियां आती हैं, तो यहाँ भी ये वाली गलती आप करते हो। साख्त और बनावट के हवाले से भी बेटा मुझे याद करवाइएगा, किसी लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगी, उसके हवाले से भी एक एसएलओ है आपका। तो यहाँ बेटा आप या तो आपकी लिख दें, आपको जो इजी लगता है, या फिर आप आयन नवाजिश होगे। ये इसका मतलब यही होता है बेटा कि आप किसी से काम ले रहे हो, आप उसका शुक्रिया अदा कर रहे हो, ठीक है। ये लिख दे, आसान लग रहा है आपको तो। और उसके बाद बेटा होगी, यहाँ पे बेटा आपने खत्मा जरूर डाले। ये बेटा मैंने मूसो काफ जो होते हैं ना, इन पे फोकस जरूर करती हूँ बच्चों की मैं। एक ये जब क्लास में प्रैक्टिस हो रही होती है, तो उस वक्त बेटा मैं एक गलती भी काउंट नहीं करती, ठीक है। मूसो काफ की, हत्ता कि ये खत्मा बहुत मामूली सी चीज है, लेकिन मैं उसको नहीं करती एग्री। तो बेटा इसलिए कि ये चीजें आपके रमूजो काफ बेटा चेक होने हैं आपके पेपर में, ठीक है। अलारिस ये दरमियान में लिख दें, या आप यहाँ बेसिकली अलारिस का मतलब होता है दरख्वास्त देने वाला। अच्छा हाँ, यहाँ पे जो है ना, ये ताबेदार की इमला की गलती बच्चे करते थे, ठीक है। आपका शागिर्द लिखते सिंपली, अगर आप नहीं लिख सकते ताबेदार गलत ना लिखे, ठीक है।
और ये अलिफ है, अलिफ बे जीम। ये होता है बेटा अपना नाम वगैरह की जगह पे आपने लिखना, और ये खत्मा की अलामतें जरूर डालनी है। अच्छा हाँ, ये बेटा आपके रमूजो काफ में मुखफ़फ़ात है, ठीक है। ये मैं आपको लिख रही हूँ। इसको एब्रीवेशंस भी कहते हैं, लेकिन ये मुखफ़फ़ात उर्दू में बोला जाता है, खत्मा की अलामत लगा के ये किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा ये जो डेट होती है ना, ये आपकी यहाँ आनी चाहिए। ये ज़ाहिर है बेटा वो लिखते हुए प्रॉब्लम्स है, तो ये थोड़ा ऊपर इसी लाइन में इस साइड पे लिखे, लेकिन आपका जो मोरखा लिखे 13 जुलाई, इसी तरीके से ये सन 2025 लिख दें यहाँ पे आप ईस्वी, ठीक है। और ये आपका खत्मा। ये वाली डेट जो है ना, ये बेटा आप उर्दू में लिखे, इसकी गलती नहीं होनी चाहिए। अब बेटा ये छोटी सी एक 5 नंबर आपके इसके बनते हैं। थोड़ी सी एफर्ट से सारे रमूजों का आपका जब आप ख्याल रखेंगे, तो आपके नंबर कौन काटेगा बेटा? कोई भी नहीं काट सकता, ठीक है। आपके यहाँ से भी नंबर कटते हैं। आप लोगों ने छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है, एक दफ़ा प्रैक्टिस कर ले, आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जी बेटा अब्दुल्ला, आपका क्वेश्चन है, पूछे बेटा। मैम मैम यहाँ पे ये राइट पे अलारिस है मैम, ये तो लेफ्ट पे आएगा ना, और इसके सामने बिल्कुल मोरखा आएगी। क्या बेटा? मैम ये अलारिस आप राइट पे यहाँ आया हुआ कह है। रहे हो? यस मैम, और उसके सामने मोरखा, तो मैम वो ठीक होगा। नहीं बेटा, उसके सामने मैं मेरा जो पैटर्न होता है ना बेटा, जिस पे अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चों ने, हाँ मुझे याद आ गया, मुकद्दस से मैंने कहा था आप ज्वाइन करना, मैं आपको सेंड करूंगी। तो अभी आपका कितना टाइम बाकी है? मैं उसको शेयर कर देती हूँ। अगर बेटा देखिए, मैं बेटा इसी पैटर्न पे करवाती हूँ बच्चों को। इसका एक खास जो है ना मकसद होता है लॉजिकली, ठीक है, तैयारी जो करवाते हैं। अब कुछ जगहों पे आपकी दरख्वास्त वगैरह मुख्तलिफ उसमें लिखी हुई है, तरीकों से, गाइड बुक्स पे, हर जगह पे डिफरेंट बेटा तरीके हैं हर एक के, ठीक है। लेकिन मैंने हमेशा बेटा इसी तरीके को की है अप्रोच, इसी से सारा जो है ना। तो अब डिपेंड करता है बेटा आप, लेकिन ना इसको करें ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें हर चीज लॉजिकली आपकी मौजूद है। ओके मैम, थैंक जी यू। बेटा, मैं इसी को करवाती हूँ। बाकी देखें, मुझे पता है टीचर्स मुख्तलिफ तरीकों से करवा रहे हैं, लेकिन मैंने बेटा हमेशा इसी तरीके को अपने बच्चों को करवाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह के उनके हमेशा अच्छे नंबर आए हैं। कभी भी नहीं हुआ आज तक के, अल्लाह का शुक्र है बेटा, बच्चों के कहीं पे प्रॉब्लम आया हो, ठीक है। अभी बेटा देखिए, नेक्स्ट आपका है ये एक, आप में से कोई भी रीडिंग करे जरा। जी बेटा, कोई भी आप में से बेटा रीडिंग कर सकता है, ताकि मुझे पता चले बेटा। रीडिंग कैसी है आप लोगों की? मैम मैं पढ़ूं? ये जो हाँ दर्द जी बेटा, आप पढ़े, कोई भी पढ़े बेटा, आप पढ़े, शाबाश पढ़े।
कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कॉन्फिडेंस लेवल भी अपना साथ साथ डेवलप करें। जी आप पढ़े बेटा। गुजारिश है कि हमारा गांव जी गुजारिश है कि हमारा गांव कमोबेश 4000 नकोश पर मुश्तमिल है। गांव में हाई स्कूल, डाकखाना, पक्की सड़क और टेलीफोन को सहूलत भी मौजूद है, मगर महकमा सेहत ने अभी तक यहाँ मरकज़ सेहत कायम नहीं किया, जिसकी वजह से गांव के लोगों को बहुत तकलीफ का सामना है। गांव के मुख्तलिफ हिस्सों में अदाई लोग गांव के लोगों की सेहत से खेल रहे हैं। दिन के वक्त तो अक्सर बीमार लोग शहर का रुख करते हैं, मगर रात को हंगामी सूरत हाल में अक्सर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और अक्सर मरीज तबी इमदाद ना मिलने की वजह से रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। गांव के 15-16 किलोमीटर जी 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 बेटा पढ़। अहाता में कोई मरकज़ सेहत नहीं है। हम गांव के लोग मरकज़ सेहत के लिए कम से कम 2 एकड़ मुफ्त ज़मीन मुहैया करने के लिए तैयार हैं। बराहे मेहरबानी जल्द से जल्द हमारे गांव में मरकज़ी मिनट बेटा, मुझे कॉल आ रही है मुकद्दस की, मैं चाहती थी कि वो क्लास ज्वाइन कर ले, अब जूम है उसके पास या नहीं, तो आपकी मैं बात करवाना चाह रही थी, ठीक है। बेटा मैंने आईडी नंबर सेंड किए, 1 मिनट मैं देखती हूँ बेटा, अगर हुई तो, अगर बेटा उसका ज्वाइन कर लिया तो फिर इंशाल्लाह बात होगी, ठीक है। आपसे भी मैं करवा दूंगी, जो भी क्वेश्चन पूछना आप पूछिएगा आप लोगों को, ताकि मोटिवेशन के लिए बेटा, मैंने उस बच्ची से कहा था। इन तमाम बातों को बेटा अगर आप करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपका अच्छा रिजल्ट। देखिए यहाँ आपने चेंज बेटा यही करना है, महकमे को चेंज कर दें। यहाँ देखें नाज़िम साहब का नाम आ गया प्रिंसिपल साहब की जगह, और यहाँ पे बेटा ये चीज़ आप कर दें, ठीक है। ये थोड़ा सा अलामत का ख्याल रखें। ये कुछ चीज़ें ना उस वक्त बेटा मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं थी उर्दू में, टाइपिंग में, तो ये उस वक्त मैं सीख रही थी इनिशियल बेसिस पे, ठीक है। और आपके लिए भी ये एक मोटिवेशन है कि आप लोग भी बेटा अगर मुश्किल मिजाजी से लगे रहे हैं ना, स्किल्स को जरूर सीखिएगा। आप हर चीज की स्किल एक जरूर ले, ठीक है। अब आगे देखिए बेटा, गुजारिश है कि हमारा गांव जो है कम, यहाँ देखिए यहाँ भी मेंशन नहीं किया, कमोबेश 4000 नफूस आएगा यहाँ पे, ठीक है। नफूस यानी लोग, अफराद पर मुश्तमिल है। गांव में हाई स्कूल, डाकखाना, पक्की सड़क और टेलीफोन की सहूलत भी मौजूद है, मगर महकमा सेहत ने अभी तक यहाँ मरकज़ सेहत कायम नहीं किया, जिसकी वजह से गांव के लोगों को बहुत तकलीफ का सामना। ये बेटा आप का सिर्फ यहाँ पे चेंज आना है, बाकी यहाँ आप सिर्फ नाज़िम साहिब का वो नाम है तो यहाँ आप उस बंदे का नाम लिखेंगे जिसके, लेकिन ये जो बाकी चीजें हैं ना उनको आपने फॉलो करना है, आप उनको आपने इंस्ट्रक्शंस को। यहाँ बेटा फिदवियाने अहले, जी बेटा अली हैदर आपका क्वेश्चन है कोई?
मैम हम लोग 9-10 के अंदर सिटी मेंशन नहीं थे करते, वाजे नहीं थे करते कि किस इलाके के लिए लिख रहे हैं, जैसे अलिफ बे जीम बस। तो यहाँ पे हमने वाजे करना है कि हम किसको लिख रहे हैं। जैसे अगर कोई कॉलेज के मुतालिक आती है कि सर्टिफिकेट निकालने के लिए कॉलेज नहीं के नहीं प्रिंसिपल बेटा, के आप नाम नहीं लिखे हैं। लिखोगे, नहीं मेंशन नहीं करोगे, यही चीज बेटा मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो बेटा ये मुकद्दस ने ज्वाइन कर ली है। जी मुकद्दस बेटा, आप ये जरा बच्चों से बात करें और उनको बताएं। हाँ ये बेटा जी बेटा, इनको बताएं जरा अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेशन के लिए कि आपने कैसे 100/100 मार्क्स लिए। आवाज आ रही है मैम मेरी? जी बेटा आ रही है आपकी आवाज। पहले तो सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मैं कल भी मैम को ये बता रही थी कि 100 नंबर कुछ लेना ऐसा ये नहीं कि अचानक से हुआ है, ये सब कुछ ना मैम की मेहनत है, मैम का इखलाक, मैम का प्यार और मैम की मेहनत। और मैम जिस लगन से पढ़ाती है ना, तो मैम अपने स्टूडेंट से यही चाहती है कि जिस लगन से मैं पढ़ा रही हूँ ना, मेरा बच्चा भी आगे उतना ही मुझे रिस्पॉन्स दे। तो मेरा ये था कि मेरी ना मैम से दिल लगी काफी हो गई थी। मैं एक एक छोटी छोटी चीज मैम से पूछती थी जाकर, और एक छोटी छोटी चीज ना बैठ के नोट करती थी मैं, कि अगर मैम कुछ लाइन बोल भी रही है ना तो मैं वो भी लिखती थी। तो बस उसकी वजह से ही मैं अपने रजिस्टर भरती, मैं किसी सब्जेक्ट का नहीं इतना लिखती थी जितना मैं उर्दू का लिखती थी। तो बस उसका ही इतना वो हुआ है। और मैम ने जो एमसीक्यूज तैयार करवाए थे हमें, मैम ने हर पेपर तैयार करवाया था, चाहे एसएल हो चाहे पिछले पास्ट पेपर्स हो। बस उनको एक नजर देखा है कि पहले मैम ने काफी तैयारी करवाई हुई थी। तो हर मैम का लेक्चर लेना और मैम की एक एक चीज नोट करना, बस यही। और मैम की ग्रामर मैंने बहुत अच्छी पिक की थी, जैसे मैम करवाती हैं, जैसे मैम अभी करवा रही है। बस कि मैम की ये जो, बस मैं सबको यही एडवाइस दूंगी कि मैम जो पढ़ा रही होती है ना, वो आप लोग सब कुछ नोट किया करो। और जब जिस दिन पेपर हो या कोई भी पेपर हो, आप वो लोग रजिस्टर खोल के बैठा करो कि उस दिन उस लेक्चर में मैम ने क्या क्या बोला था और मैम ने बोर्ड पे क्या लिखा था। जो मैम की बोर्ड की समरी होती है, सबसे जरूरी चीज ये है। मैम कुछ आप पूछें? बेटा आप बच्चों को बताएंगे बोर्ड समरी में कैसी लिखती थी, क्या करती थी फिर। हाँ, बोर्ड समरी जैसे अभी जनाबे आली है ना, इसके आगे जो अलामत लगाई हुई है, और जनाबे आली के जैसे जेर है, और इसको बाकायदा सर्कल करके फिर एक लाइन लगा के फिर मैम लिखती थी कि ये क्या चीज है। फिर आली के आगे जो अलामत है, फिर इसको सर्कल करके लाइन करके मैम लिखती थी। और ऐसी ऐसी हर चीज, और वैसे ही सेम चीज आप लोग ना पेज पे नोट किया करो और लिखा करो कि जैसे मैम लिखती हैं, और वही चीजें वहीं से याद रह जाती हैं। और फिर जब जिस दिन पेपर वगैरह हो या कोई टेस्ट वगैरह, तो वही खोल के बैठा करो, उसी को देखा करो, और वो जहन में बात रह जाती है। क्योंकि पहले आपने लेक्चर लिया होता है, उसके बाद लिखा होता है, तो बात जहन से निकलती नहीं है। और बेटा आप लोग भी अगर मुकद्दस से कुछ पूछना चाहते हैं ना तो और आप लोग भी सलाह पूछ कोई लें। है, उसका क्वेश्चन आया है तो उसका मैसेज है जी। आप भी बेटा पूछ सकते हैं क्वेश्चन। जी बेटा अली हैदर, आप क्या पूछना चाह रहे हैं।
पेपर के अंदर ज्यादा इम्पोर्टेंस नॉलेज की होती है या हैंड राइटिंग की? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको आता सब कुछ है, उनकी नॉलेज भी बहुत अच्छी होती है, तशरीहात करना, कवायद वगैरह सब कुछ, लेकिन उनकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से उनका पेपर का जो फर्स्ट इम्प्रेशन है ना, वो भी इतना अच्छा नहीं पड़ता, जबकि उन्होंने बहुत अच्छा लिखा होता है अपनी तरफ से, यानी कि एफर्ट पूरी पुट की होती है। हाँ बिल्कुल, ये भी है। उसका ये होता है कि आप ना मार्कर सबसे ज्यादा यूज कर लिया करो, या कोई हेडिंग है उसको ना मार्कर से प्रोमिनेंट कर दिया करो, क्योंकि आप अच्छी बात शुरू कर रहे हैं ना, उसकी जो पहली उस चीज की जो कहते हैं ना बेस होती है, उसको आप हेडिंग के तौर पर लिख दिया करो। अब होता है अक्सर के काफी राइटिंग बुरी होती है, लेकिन उसका पता ये हो जाता है कि आपने उसको हेडिंग में कर दिया करो, और अगर क्वेश्चन खत्म हो रहा था नीचे लाइन लगा दी, फिर अगला क्वेश्चन। अगर राइटिंग आपकी गंदी भी है ना, तो आपको मतलब अगले को पता चल जाएगा भाई क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो रहा है और इस क्वेश्चन का इतना आंसर है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया, अब अगला शुरू हो रहा है। किसी की तो इतनी राइटिंग गंदी होती है ना, पता ही नहीं चल रहा होता कि अगला सवाल कहाँ से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा है। उसका भी यही हल है कि उसको आप मार्कर से सही तरह प्रोमिनेंट करो, और जहाँ चीज खत्म हो जाती है वहां लाइन लगा दो अच्छी स्केल से नीचे, और फिर अगला क्वेश्चन और उसका आंसर शुरू करो। और मैं तो ऐसे ही करती थी ताकि जब कोई पेपर चेक करो ना, तो ताकि उसको आसानी हो और उसको हर चीज आपकी वाजिया हो रही हो। जी बेटा, और कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है? तशरी में बेटा आपने क्या पूछा है? ये अब्दुल्ला वो रेफरेंसेस वगैरह के हवाले से बता दे बेटा इनको तशरी में। रेफरेंस ये होता है कि मैंने तो अपनी ये जो मेरे इसमें 100 मार्क्स आए थे ना, इस पेपर की तशरीह मैंने ऐसे की थी कि 4 लाइनें होती हैं ना, 4 लाइनें, उसको मैंने लिखा था एक पेज पे, 2 लाइनें ऊपर मैंने जो शेर आया हुआ था पहले वो लिखी, वो मैंने लिखी थी ब्लैक मार्कर से। उसके बाद नीचे लिखी तशरीह करके लिखा मैंने ब्लू मार्कर से। उसके बाद मैंने तशरीह मैंने की थी 7 से 8 लाइनों की। उसके बाद जो उस मतलब उन्होंने शेर दिया हुआ था उसके रेलिवेंट मैंने उसका ना कोई शेर लिखा था, तो मैम ने हमें शेर भी काफी ज्यादा याद करवाए थे। फिर उसके बाद जो सेकंड लाइन थी ना, फिर मैंने उसकी तशरीह शुरू की थी। फिर मैंने 7-8 लाइनों की तशरीह की, एंड पे मैंने 2 लाइनें बचा के उसके अकॉर्डिंग फिर उसी एक लाइन के अकॉर्डिंग एक शेर लिखा था, और उस पेज को मैंने ऐसे कवर किया था, अगला पेज भी मैंने ऐसे ही किया था। तभी मुझे लग रहा है कि उसके पास कोई ना वजह ही नहीं थी मेरा नंबर काटने की। फिर मैंने एक लाइन पहले उसको 7-8 लाइनों में एक्सप्लेन किया अच्छे से, फिर उसी के हवाले से मैंने एक शेर लिखा है। फिर उसके बाद मैंने सेकेंड लाइन को 7 से 8 लाइनों पे एक्सप्लेन किया, फिर उसी के हवाले से मैंने 2 लाइनों का शेर लिखा, इस वजह से। बेटा स्मार आप क्या पूछना और चाह रहे? जी बेटा स्मार। मैम मैंने ये पूछना था कि जैसे हम लोग फेडरल में हम लोगों का पेपर होता है, तो हम लोगों के पास एक शीट होती है, तो तशरीह के लिए तो हमारे पास सिर्फ एक ही पेज होता है, एक पेज में हम इतना कुछ कैसे लिखेंगे? बेटा सब नहीं, मैं कुछ वही हो आपको जाता है। बता रही हूँ। पेज आप देखना, अगर आप वो भी दिया होगा ना आपने सेंडर वगैरह, आप पेज देखना। पहले आपने जो 2 6 4 लाइनों को होता है ना, 2 लाइनें होंगी वो पहले ऊपर लिख लेना। उसके बाद अगर 6-7 में 8 बोल रही हूँ, तो आप देख लेना 6 लाइनों पे कर देना। 6 लाइनों पे उसके बाद उसके रिलेटेड शेर कोई अच्छा हो, सॉलिड हो, वो लिखना। फिर उसके बाद भी देखना आपके पास काफी ज्यादा लाइनें बचेंगी, फिर दूसरी लाइन को दोबारा शुरू करके उसकी एक्सप्लेनेशन, फिर एंड पे आपने खुद 2 लाइनें बचानी होती हैं। फिर उससे शेर लिख के फिर नीचे मैंने लाइन भी लगाई थी प्रोमिनेंट, कि वो पेज इतना वो मैंने
और मेरी थोड़ा सा राइटिंग भी बड़ी बड़ी थी, लेकिन फिर भी मैंने उसको किया और उसी पेज पे उन 2 लाइनों को ऐसे करके लिखा था मैंने। दोनों मिसरों की बेटा वो अलग भी आपको जी जी, वो आपको भी लग रहा है कि पेज छोटा है, लेकिन आप वो जब देखोगे ना इस शेर की, तो वैसे भी लाइनें छोटी छोटी होती है, तो वो हो जाता है कवर। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन? जी मुकद्दस बेटा, जी कोई पूछना चाह रहा है बेटा? कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं आप लोग बेटा। जी बेटा अब्दुल्ला पूछे। मैम मेरा एक और क्वेश्चन है। जी जी पूछे। अब हम लोगों को कॉलेज लेवल पे ना हमारे उर्दू के सर ने उन्होंने खुद पर्सनली मना किया कि तशरीह लिखने के लिए ना आप लोगों ने शेर की तशरीह के वक्त हवाला मतन नहीं लिखना, ना आप लोगों ने अल्फाज के मानी लिखने हैं, शेर के बाद डायरेक्ट तशरीह स्टार्ट कर दें आप। बेटा ठीक कहा लेकिन उन्होंने। जी जी पूछे। चलें ठीक है, लेकिन अब अगर हमें शायर का पता है तो शायर को अगर हम लोगों ने यानी कि मुतल्लिक बताना है कि ये किस शायर ने लिखा है शेर, तो शायर की जिंदगी हालात, तो वो हम हर तशरीह के अंदर शायर का जिक्र करेंगे या सिर्फ पहले तशरीह में डिटेल के साथ थोड़ा, अच्छा हाँ तो बाकी सही 2 सही तशरीहात जो है वो टू द सही पॉइंट। सही क्वेश्चन आपका जी। जी बेटा मुकद्दस आप देंगे या मैं जवाब दूं इसका? मैं अपने पॉइंट ऑफ से दूं तो मैंने ऐसे लिखा था कि जो मतलब आई थी ना, मतलब तशरीह, मतलब शेर, मतलब शायर था उसका, वो मैंने लिख रहा, उसका नाम लिख के कह दिया था कि इस शेर में शायर ये कह रहा है, भले उसका नाम लिख दिया था। उसके बाद मैंने उसके बाद 1 या 2 लाइनें और एक्सप्लेन बस की होंगी, इतना एक्सप्लेन नहीं किया था मैंने शायर वो का। मैंने बेटा ज्यादा फोकस शेर को किया था कि उसमें जी शायर क्या कह रहा है। तशरीहात में बेटा वही शेरी इस्तिलाहात, सनतें वगैरह जी जो भी चीजें। तो जी दूसरा बेटा सनत जी मैम, जी सॉरी आपको कट किया, लेकिन ना मैम उसमें ना एक शेर में ना 2 से ज्यादा सनतें वगैरह इस्तेमाल नहीं होती, तो वो 2 या 3 लफ्ज आप एक एक लाइन में या लिख दो। जब मुरक्बे अज़ाफ़ी ज्यादातर यूज होता था, तलमी यूज होता, ऐसे यूज होते थे, ज्यादा उसमें चीजें यूज नहीं होती मैम, अब ये कि मुकद्दस जिनको हम बेटा वो। याद आ रहा है ना बेटा, अभी आप लोगों को मैं यही चीजें बता रही हूँ ना सारी, कि ये चीजें आप मेंशन करें।